Friends, welcome back to the first technical session of Virtual National Tax Conference 2020. The Gyan Pravah continues. Friends, the Honorable past President of the country, Dr. APJ Abdul Kalam used to say, knowledge with action converts adversity into prosperity. I am confident that we will take a step forward in doing so by enriching ourselves with the wealth of knowledge. The topic for this session is charitable trust, educational institutions, hospitals, and discretionary trusts under the Income Tax Act 1961. Friends, at the end of the session, we will be taking questions from the audience. Please send in any queries you have on the Q&A panel so that the same may be taken up by our panelists. The dais for the session is ready. The chairman for this session is respected Dr. Ashok Saraf, Senior Advocate, and the keynote speaker for the session is the charismatic speaker, Dr. Girish Ahuja. The moderator for the session is the eloquent advocate, Mr. Arvind Shukla. I welcome you all. I now request Mr. Shukla to take over the proceedings. Over to Mr. Shukla. Welcome to the first session of PNTC 2020. Which is going to contemporary topic. Friends, kindly bear with us. Mr. Shukla ji will be back shortly. Please join me. Come. Extremely sorry for that small problem. I restart. There are several entities under the Income Tax Act which are given exemptions from tax on fulfillment of prescribed conditions. Some of the most important of them are public charitable institutions, education institutions, and hospitals. The topic for the session is charitable institutions, educational institutions, hospitals, and discretionary trusts. Friends, any questions related to the session will be posted on the Q&A box for being addressed by the tax experts. To deliberate upon this issue, we have invited one of the most popular star auditors on the subject, Dr. Girish Ahuja. The chairman of this session is Dr. Ashok Saraf, another doyen in the field of legal fraternity, who is past president of AIFTP, senior advocate Dr. Saraf, passed his BCom honors from Guwahati University with honors in business management, secured first class second position in the university, passed MCom examination from Guwahati University, secured second position in the university in the LLB examinations in 1986, awarded doctorate of his thesis, corporate taxation in India by the Guwahati University, joined the Guwahati High Court Bar in 1986, had an extensive practice in the High Court, especially in writ taxation, corporate and commercial law, designated senior advocate by the Guwahati High Court, served as special standing counsel for the Income Tax Department. He was also former Advocate General of Arunachal Pradesh. He has authored many publications and has held various posts with the tax bar associations.
Our key speaker, Dr. Girish Ahuja, is so well known and popular amongst all tax professionals that he needs no formal introduction. His in-depth knowledge on finer points of law, duly supported by latest case laws, make his words the final authority on any tax matter. Dr. Ahuja did his graduation and post-graduation from Sri Ram College of Commerce and was position holder. He got his PhD from Faculty of Management Studies, University of Delhi. He has been teaching direct taxes to students at various levels for over 35 years. He is a fellow of the Institute of Chartered Accountants of India and was placed in the merit list of both intermediate and final examinations. He is senior faculty member of Sri Ram College of Commerce, Delhi University, and also visiting faculty member in the Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, and various management institutes. He has been nominated by the government to the Central Council of the Institute of Company Secretaries of India for 2 terms. He is member of Fiscal Law Committee of ICAI and editorial board of ICSI. He is also on the board of directors of many companies and has a vast and rich experience in the field of taxation. With 2 great doctors commanding the session, in order to get the maximum benefit from them, we have to very patiently digest each word of wisdom coming from our learned speakers. I respectfully hand over the mic to the chairman of the session for further conducting the proceedings and to start with his opening remarks. Over to Dr. Ashok Saraf, sir. Thank you, Shuklaji. I'm grateful to the organizers of the National Convention for giving me this opportunity and honor to chair the first technical session of the virtual National Convention. In fact, as the chief guest of the first in the inauguration session said, that the role of the chief guest is very simple. He has to see the chair, comfortable the way to go out, and rest to allow everybody to speak. In fact, when I was requested to be the chairman of the session, I specifically told Mr. Sanjay Kumar that when the speaker is like just Dr. Girish Ahuja, then I don't think that there is any role of the chairman of the session to say anything. In fact, the chairman's role is only to request the speaker to speak on the subject. Friends, the subject which has been chosen for today is really very interesting. As you all know, whenever any exemption is provided under the Income Tax Act, the controversy starts. The department always, with some way or other, tries to deny the benefit of the exemption and thereby frustrate the very purpose of the incorporating the provisions for the exemption. The provision for granting the exemption is very loud, but the various controversies that what is the charitable purpose, what is all those things, the controversies are still going on. Various judicial precedents are there, one way or other, which makes the things more complicated. And in fact, we like to hear from Dr. Girish Ahuja, who is an eminent person, a faculty in the field taxation law, that what is the detail about on the subject. And without going into anything further, I will request Dr. Girish Ahuja to kindly deliver his speech. Good afternoon to all. Let me, sir, first, before I address everyone, let me tell you one thing. When I was hearing the previous speaker, I was wearing a green t-shirt, very bright green t-shirt. The moment he mentioned that people have to appear, they appear in t-shirt and all that, I thought I must change myself. So I immediately rushed and slipped onto the jacket and of course the shirt also. So sorry if I had been there, because I thought it is a holiday and one must enjoy and have wear a t-shirt. But very rightly he pointed out, so I have changed myself to that dress. And secondly, let me give you an advice before I proceed. Please don't go to the Google at all for income tax, at least for this purpose.
Whatever biodata which has been read about me is only 20 years old. It's only 20 years old. They just downloaded from the Google and read it out as it is. I retired from Shriram College about 11 years back, and there is no fiscal committee in Institute of Chartered Accountant of India for the last 18 years. And there are so many things are there. So the biodata, please don't read whenever you are going to do income tax, you have to be very update. Update means you have to be very careful that whatever you are downloading, it has been properly updated. चलिए ये तो बात मैंने कर दी. Let me start with this. The chairman of this technical session, of course, Dr. Ashok Saraf ji, the moderator, Mr. Arvind Shukla ji. We have other dignitaries. I've seen. I don't know whether she's still there. Honorable Justice Sumitra Sakia ji. We have the National President, Advocate Mrs. Nikita Bazoika ji. The chairman of North Zone, we call it president or chairman, I don't know, Asim Jafri ji, vice president, of course. And vice president, A.K. Shrivastava ji, Sanjay Sharma ji from Delhi, Advocate Sanjay Sharma ji, Advocate Sanjay Kumar ji also sitting here. Other dignitaries, Mr. D.K. Gandhi ji, the other Arvind Mishra ji, the other dignitaries hearing me, ladies and gentlemen. Let me tell you first, let me tell you, sir, there are 3 sections in 11, 12, and 13 for trust, charitable trust, and religious trust, maybe educational institution also. And there is one more section, section 10, clause 23C. So let me tell you, I will have to tell you before, what is the difference between section 10, clause 23C, and of course, section 11, 12, and 13. I am saying section 10, clause 23C. You may say it should be subsection 23C. It's absolutely wrong. It is not subsection 23C. Why I'm saying this is that there are many sections in Income Tax Act which does not have subsection. It does not have subsection. Although we know income tax is a very complicated subject. You have section, you have subsections, you have thereafter clause, you thereafter have subclause, and there also it is not complete. Thereafter you have item, after that you have sub-item, then you start with first proviso, provided that, you start with the second proviso, provided further that, you start with the third proviso, provided also that, then you can keep on adding the proviso by saying provided also that. Like when you say, I thank Dr. Ashok Saraf, I thank Dr. Justice on this days, I also thank, I also thank, I also thank, I also thank. Keep on adding the also, and you can have 20 proviso given under section 10, clause 23C. Still it is not complete. There is explanation number 1, explanation 2, and maybe third explanation also. You are looking for a full stop, the comma is after 6 lines. So what I'm trying to explain, there are certain sections which do not have subsection. What are those sections? Generic name, common name of the section. Then you don't have subsection there, you have clauses there. Section 2, what is the heading the section 2? Definition. There is no one definition given. When you talk about subsection, it talks about the main section. But when you talk about general section, the common section, it has clauses. It does not have subsection. So section 2, clause 31, meaning of a person. Section 2, clause 34, total income. Section 2, clause 7. Section 2, clause 9. Section 2. This is the way of section. Now section 10. Section 10 is income which do not form part of total income. There is not one income which do not form part of income. There are so many incomes which are exempt. So section 10 does not have subsections. It has each clause. Section 10, clause 1, agricultural income. Section 10, clause 2, share of profit from HUF. Section 10, clause 3, 2A, share of profit from firm. I have seen many Supreme Court judges also saying subsection. And even the senior most lawyers saying section 10 subsection. But section 10 does not have subsection. It has clauses. Why I gave you so much of thing? Because I'll be using section 10, clause 23C, subclause 3IA, 3IAB, 3IAC. You'll say, what is he talking about? So let me now start.
we have two sections for exemption for charitable trust. One is section 1023C, another is section 11, 12, 13. Let me first take section 11, 12, 13, then I'll come to section 1023C. Now, what really is that this is relating to charitable or religious trust. Section 2, clause 15 has given you the definition of what is a charitable purpose. Charitable purpose includes relief to the poor. Number one, relief to the poor. Why I'm saying? Because I have to compare with 1023C. Relief to the poor. Second is education. 3 is yoga. 4th is medical relief. Preservation of environment, including watershed, wildlife, forest, preservation of monument and places of interest, and advancement of any other object of general public utility. This is the definition of a charitable purpose. Why I'm saying? Relief to the poor, number 1. 2, education. 3, yoga. 4, medical relief. 5, preservation of environment, including watershed, forest, wildlife. 6, preservation of monument and places of importance. And the 7th is advancement of any other object of public utility. Now, 7th limb, there is a proviso. First 6 limb, there is no proviso. 7th limb says, advancement of any other object of general property will not be called a charitable purpose if it involves an activity of carrying on any. May I request, at least 3-4 persons should be in front of me. You know, everybody goes away and then I'm talking to wall. I have in front of me Mr. Arvind Shukla only. The others have shown their photograph or they have gone. I cannot enjoy. I have to ask them many things. Now Mr. Asim Jafri is also come, because what I'm trying to say, unless and until I know to whom I'm talking, I'm not talking to the walls. The virtual is only this thing. When you come for the audience, when you have a virtual, you don't enjoy. So I want to read the face of each person, whether they are understanding, am I running fast, or whether they are not able to understand. Sometimes I will name I will ask them, have you understood or not? So I want 2 more. National President is with me now. Madam Nikita ji also is there. Asim Jafri is not there. Arvind Shukla is not there. Where is the Vice President, Mr. A.K. Srivastava? He should also come in front. Where are the other persons? I must have 5-6 persons in front of me. I don't enjoy. I can't enjoy without talking to each and every person. So I'm coming back. I said there are 7 limbs in a charitable purpose. Relief to the poor, education, yoga, medical relief, preservation. I told you 2 kinds of preservation. In these 6 limbs, you can do an activity of carrying on a business. There is absolutely no restriction to carry on a business by these charitable trusts, provided it is incidental to the attainment of the objective of the trust and separate books of accounts have been maintained for that. We have absolutely no objection that a charitable trust of first 6 category may do business, but that business must be incidental. Everybody has disappeared except Mr. Arvind Shukla. Everybody has disappeared again. What should I talk to whom? Everybody has disappeared again, sir. I'm not saying those who are interested can come and show my face. Now Mr. D.K. Gandhi has come back. Thank you very much, Mr. Gandhi. I'm noticing I have to have some persons in front of me. Otherwise, I don't enjoy. So first 6 limbs of categories of charitable can do any activity of business, provided that business is incidental to the attainment of the objective of the trust and separate books of accounts have been maintained. But the last category, advancement of any other object of general public utility, said that it will not be treated as a charitable purpose if it involves an activity of carrying on any trade, commerce or business, or any adventure or concern in the nature of for rendering service to trade, commerce or business, whether for any consideration or for any fee or for any remuneration, unless the receipt from this business activity does not exceed 20% of the gross receipt. So if you are covered under advancement of general public utility, you can do business, but your gross receipt from that business cannot exceed 20% of your total receipt.
If it exceeds 20%, exemption will not be given if you are covered under advancement of any other object of general public utility. But if you are in education, if you are having relief to the poor, or you are a hospital or a medical institution, or you are preservation of environment, you can do business. And commercial activity receipt can be more than 20%. The only condition is that business should be incidental to the attainment of the objective of the trust, and separate books of accounts are maintained. And all business are incidental to the attainment of the objective of trust. Thanti Trust has decided, Supreme Court in that case. So there is absolutely nothing to worry. But now I'm comparing with, this is meaning of charitable purpose. Religion, meaning of religious activity has not been given, because religion is only for propagating of religion. And once you propagate a religion, there is absolutely no need to tell you the definition of a religious trust. So religion can do even business activity, provided it is incidental to the attainment of the objective of the trust, and separate books of accounts are maintained for that. This I'm talking about section 11 I'll be taking. But now come to section. Now try to say, Arvindji, try to listen carefully. And of course, I would like D.K. Gandhiji to give attention. There is section, sir, section 1023C, clause 3 IAB, subclause 3 IAB. Section 10, clause 23C, subclause 3 IAB. Next is subclause 3 IAC. Next is subclause 3 IAD. Next is subclause 3 IAE. Next is subclause IV. Next is subclause V. Subclause. Then is section 10, clause 23C, subclause VI. And there is section 10, clause 23C, subclause VIA. ये सब कुछ आपको आता है. मैंने तो इंप्रेशन डालने के लिए क्लॉजेस सुना दी, ताकि आपको पता लगे कि मुझे क्लॉजेस भी पता है, मुझे इनकम टैक्स आता है. अदरवाइज आपको पता है, क्लॉज नहीं याद होगी, सब क्लॉज याद नहीं होगी, लेकिन कंटेंट्स आपको याद है. मैं बताने जा रहा हूं. Section 10, clause 23C, subclause 3 IAB. Income of a university or educational institution, not for making any profit, but for imparting education, who is substantially or wholly financed by the government, shall be fully exempt. क्या मैंने कहा? Income of a university or an educational institution, not for making any profit, but for imparting education, which shall be exempt if it is wholly, Gandhiji, if it is wholly financed by the government or substantially financed by the government. Substantially का मतलब होता है more than 50% grant is coming from either the central government or the state government. तो 50% से ज्यादा grant है या 100% है, तो you are funded by the government. ये सेक्शन 1023 IAB की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहता है. एंड इनकम ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. फुल्ली एग्जेम्प्ट. इसमें कोई बुक, कोई आपको ऑडिट नहीं कराना है. कहता है कराना, उनका कहता है वो अलग बात है. कोई आपको ऑडिट नहीं कराना. कोई 85% 15% वाली कंडीशन नहीं है कि 85% टू बी स्पेंट, 15% टू बी एक्यूमुलेटेड. ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं. कोई भी आपको कंडीशन मेट नहीं करनी है. एक ही है मैंडेटरी, दैट इज यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, जो पहले नहीं थी. 3 साल पहले आ गया that every university or educational institution, though wholly financed or substantially financed by the government, will have to file return of income under section 139 subsection 4C before the due date of return. ये रिटर्न कंपलसरी है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है. कोई कंडीशन नहीं है 85 वाली, 50 वाली, कॉर्पस डोनेशन या कोई भी ऑडिट कराने की कोई कंडीशन नहीं है. ये क्लियर हो गया गांधी जी? बिल्कुल ऐसा ही है सेक्शन 1023C 3 IAC. Income of a hospital or a medical institution not for making any profit but for philanthropic purposes will be exempt if it is wholly or substantially financed by the government. So जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां मोर देन 50% ग्रांट या 100% ग्रांट गवर्नमेंट देती है, उसकी भी इनकम टोटली एग्जेम्प्ट होती है, चाहे वो एजुकेशन, वो हॉस्पिटल हो या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो. लेकिन
यहां भी एक ही कंडीशन है, बुक्स। क्या कंडीशन है? रिटर्न मैंडेटरी, रिटर्न ऑफ इनकम डालना मैंडेटरी है 139(4)(c) के अंदर। सर ये दो सब क्लॉजेज हो गई, 3IAB 3IAC। अब मैं जा रहा हूं, इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन whose gross receipt do not exceed 1 crore। जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस रिसीट नहीं है, फंडेड बाय गवर्नमेंट नहीं है, ग्रॉस रिसीट डू नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो वो भी इनकम टोटली एग्जेम्प्ट है अरविंद जी, टोटली एग्जेम्प्ट है। उसमें भी कोई कंडीशंस नहीं है, कोई ऑडिट एज पर इनकम टैक्स कंपलसरी नहीं है, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनानी है, सिर्फ करना है, रिटर्न मैंडेटरी है, रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी है, कोई 15% 85% की कंडीशन नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये भी बता दूं वो कंडीशन नहीं है। फिर आता है इनकम ऑफ हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस whose gross receipt do not exceed 1 करोड़। ये भी वही वाली चीज है। इसके क्या सेक्शन है? सेक्शन 1023C 3IAE, एजुकेशन का था 3IAD। AD और AE 1 करोड़ वाले हैं, और AB और AC सब्सटेंशियली या होली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट है। तो इनके बारे में समझ में आ गया सर? कोई रिटर्न नहीं भरनी, सॉरी कोई 85-15 नहीं है, कोई ऑडिट कंपलसरी है मिस्टर श्रीवास्तव जी, ये कोई ऑडिट कंपलसरी नहीं है, कुछ नहीं करना, एक ही चीज है, रिटर्न भरना कंपलसरी है, और कोई चीज आपसे मांगी नहीं हमने। क्लियर है सर? क्लियर है? अब मैं 4-5 को बाद में लेता हूं। 1023C सब क्लॉज VI। अब जरा ध्यान से सुनना, इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन हुज ग्रॉस रिसीट एक्सीड ₹1 करोड़। अब 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप 1023C VI में आ सकते हैं। और दूसरा सेक्शन 1023C VIA, अगर आप हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं not for making any profit but for philanthropic purposes, तो if your gross receipt exceed ₹1 करोड़ तो आप VIA में आएंगे। ये क्लियर हो गया सर? सो सेक्शन 1023C VI एजुकेशनल के लिए है, ग्रॉस रिसीट एक्सीड 1 करोड़। सेक्शन 1023C VIA हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए ग्रॉस रिसीट 1 करोड़। लेकिन रुकिए, थोड़ी देर पहले बताया था कि 11-12 में भी तो एजुकेशन है और मेडिकल रिलीफ है, वहां भी तो एजुकेशन है और मेडिकल रिलीफ है, तो दोनों में फर्क क्या है और कौन से सेक्शन में जाना चाहिए? मेन तो पॉइंट ये है। देखिए, यहां 1 करोड़ तक था तो पूरा माफ था, लेकिन जो 11-12 में जाता है, 1 रुपया भी इनकम कमाएगा, एग्जाम कराना है तो उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो मैं आप कंपैरिजन कर रहा हूं अरविंद जी बिटवीन 1023C एंड 11-12 फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन। कंपैरिजन देखिए असीम जी, कंपैरिजन देखिए, जाफरी जी कंपैरिजन देखिए क्या है। इन द केस ऑफ 1023C यू नीड टू हैव अप्रूवल, अप्रूवल लेनी पड़ती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जामिनेशन से अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल। लेकिन 11-12 वालों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए 12A में अप्लाई करके, रजिस्ट्रेशन। इधर राइट साइड में रजिस्ट्रेशन है, लेफ्ट साइड में अप्रूवल है। राइट साइड में फॉर्म आपको 10A भरना पड़ता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेफ्ट साइड में फॉर्म 56D भरना पड़ता है अप्रूवल के लिए। आप कहेंगे फर्क क्या है? तीनों चीजें तो दोनों में माफ है, उधर भी माफ है, इधर भी माफ है, तो फर्क क्या है? अभी बताता हूं। पहले अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन। अभी एक अमेंडमेंट भी बताऊंगा, लेकिन वो अमेंडमेंट पोस्टपोन कर दी 1 अप्रैल तक, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन री अप्रूवल जो 1 अक्टूबर से शुरू हो जानी थी वो पोस्टपोन कर दी गई है अगले साल के लिए। तो वो मैं थोड़ा देर में बताता हूं। इधर अप्रूवल है, इधर रजिस्ट्रेशन। क्या फर्क है जी? गांधी जी जरा सुनिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आपका केस स्क्रूटनी में आ गया, तो असेसिंग ऑफिसर जब स्क्रूटनी करता है तो वो देखेगा वेदर यू आर फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट,
whether you have accumulated the fund under 11.5, are you misusing the funds, और आपके ऑब्जेक्ट को कोई नहीं फॉलो कर रहे, तो AO may not give you exemption for that year. मैं कैंसिलेशन की तो बात ही नहीं कर रहा. AO may not give you exemption of that year because you have misused the fund, you are not following the object, or you have not accumulated the money under 11.5. इस वजह से वो मना कर सकता है. लेकिन अगर आप 1023C में रिटर्न भरते हैं, रिटर्न तो भरे यार, रिटर्न तो एक ही फॉर्म में जाती है, फॉर्म 7 में, चाहे आप 11-12 में हो या 1023C में हो, रिटर्न तो फॉर्म 7 में जाती है. आपने फॉर्म 7 में रिटर्न भर दी, आपको टिक करना पड़ता है. तो अगर 1023C में है, तो अगर आपका केस स्क्रूटनी में आ गया, गांधी जी केस स्क्रूटनी में आ गया, उस केस में अगर AO को लगता है यू हैव मिसयूज द फंड, यू हैव डाइवर्टेड द फंड, या आपने यूज कर लिए फॉर पर्सन रेफर टू इन 13.3, यू हैव नॉट एक्यूमुलेटेड अंडर 11.5, तो सुनिए AO आपको एग्जेम्पशन रिफ्यूज नहीं कर सकता ना, वो मना नहीं कर सकता. AO को एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी. He will prepare a report giving the reasons for that and will send that report, refer that report to the Commissioner of Income Tax who had granted the exemption, कि kindly withdraw their approval, kindly withdraw the approval. ये कौन कर रहा है? AO स्क्रूटनी कर रहा है. AO को लग रहा है कि ये एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, AO रिफ्यूज नहीं कर सकता. AO को लिख के देना है कमिश्नर एग्जेम्पशन को कि इनकी अप्रूवल को विड्रॉ कर दीजिए. और कमिश्नर एग्जेम्पशन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आपको बुलाएगा, शो कॉज देगा, व्हाई योर अप्रूवल बी नॉट कैंसल, आप दीजिए. अब आपकी हियरिंग होगी, उसके बाद कमिश्नर अप्रूवल डिसाइड करेगा कि आपकी अप्रूवल को विड्रॉ करना है या नहीं करना. अगर तो अप्रूवल विड्रॉ नहीं करी, उसने कहा नहीं ठीक है, तो AO इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू एग्जेम्पशन. AO के हाथ में कुछ नहीं है. AO इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू एग्जेम्पशन, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं. लेकिन अगर विड्रॉ कर लिया अप्रूवल, तो AO विल नॉट गिव एग्जेम्पशन. तो पहला डिफरेंस देखा सर, वहां AO के पास पावर है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन वाला केस है. यहाँ AO को अप्रूवल कमिश्नर ने दी है, जब तक अप्रूवल विड्रॉ नहीं होगी वो कमिश्नर को उसकी एग्जेम्पशन AO को उसकी एग्जेम्पशन देनी ही पड़ेगी. ये क्लियर हो गया सर. अब दूसरा लेने जा रहा हूं. दूसरा डिफरेंस देखिए, आप 1023C में जो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं वो उसका नंबर है फॉर्म नंबर 10BB, और जो आप 11-12 की ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसका फॉर्म नंबर है 10B. वहां 10B है या 10BB है. लोग ये भी गलती करते हैं और वो भरते 1023 से हैं, रिपोर्ट 10B की लगा देते हैं, फिर कहते हैं जी CPC पागल है, उसने कह दिया कि आपकी रिपोर्ट, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है. अरे पागल CPC थोड़ी है, आपने रिपोर्ट ही गलत लगाई है. आपको पता है कि आप 1023C में है तो रिपोर्ट का फॉर्म 10BB है, आप 11-12 में है तो रिपोर्ट का फॉर्म 10B है. आप गलत लगा रहे हैं, गलती का गाली उनको दे रहे हैं. मत दीजिए गाली, पहले अपने आप को सुधारिए, फिर दूसरों को देखना. यह सेकंड डिफरेंस है सर. तीसरा डिफरेंस सर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर. ये गांधी जी सुनने वाला, अरविंद जी सुनने वाला है. एक है एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन 11(1). उसमें क्या लिखा है कि सपोज यू आर फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. सर आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, देयर इज अ इनकम विच यू हैव टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम है तो इनकम आपने ले ली, बट इट हैज एक्चुअली नॉट बीन रिसीव्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक FDR बनवा दी थी 5 करोड़ रुपए की, और उसको 5 साल के लिए इकट्ठी बनवा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट से. इंटरेस्ट में हर साल नहीं ले रहा. सो गांधी जी पहले साल इंटरेस्ट तो ड्यू होगा मुझे अपने, क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम है, मुझे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेना पड़ेगा. लेकिन इनकम तो आई नहीं, खर्चा कहां से करूं, पैसे तो है नहीं, तो कहां से अप्लाई करूं. आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं इन फॉर्म नंबर 9A. प्लीज नोट द वर्ड, फॉर्म नंबर 9A. इलेक्ट्रॉनिकली 9A भर देते हैं हम और भेजकर कर देते हैं कि आई कुड नॉट अप्लाई फॉर दिस रीजन. तो उसमें क्या होता है, और उसमें लिखा जाता है आई विल अप्लाई इन द ईयर ऑफ रिसीट और ईयर फॉलोइंग दैट. सपोज आपने 3 साल की FDR बनाई तो आप लिख के देंगे 3 साल प्लस 1 मोर ईयर, 4 साल तक खर्च कर दूंगा.
अगर 5 साल की एफडीआर बनाई, 5 साल प्लस 1 मोर ईयर, 6 ईयर तक खर्च कर दूंगा। 7 साल की एफडीआर बनाई, 7 + 1 मोर ईयर। तो इसको क्या करते हैं, इट्स अ डीम्ड एप्लीकेशन मान लेते हैं, आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं, क्योंकि आपने अंडरटेकिंग दे दी फॉर्म नंबर 9A में इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, बाद में नहीं, बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आपने दे दी, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, डीम्ड एप्लीकेशन। फिर हम इंतजार करेंगे 5 साल + 1 ईयर, 6th ईयर में अगर आपने नहीं स्पेंड की, या अगर आपने 3 साल की अंडरटेकिंग दी तो 3 + 1, चौथे साल आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो उस चौथे साल की इनकम मान ली जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा जितना आपने अप्लाई नहीं किया। सर हम तो अप्लाई कर ही देते हैं, हम पिछला अप्लाई कर देते हैं, नए की अंडरटेकिंग दे देते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमने तो कभी टैक्स दिया ही नहीं है। हमने मतलब आप सबने मिलकर। एक और उसमें भी है एक्सप्लेनेशन, किसी और कारण की वजह से, फॉर एनी अदर रीजन यू कुड नॉट स्पेंड दैट इनकम, उसके लिए भी एक अंडरटेकिंग दे दीजिए। इनकम आ गई है, लेकिन सपोज 25 मार्च को आई, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, मेरे पास पैसे आ गए, खर्च करने का टाइम नहीं है, कहते हैं आप अंडरटेकिंग दे दो, आई विल अप्लाई नेक्स्ट ईयर। और आप अगर अंडरटेकिंग दे देंगे आपको अप्लाई नेक्स्ट ईयर, तो आपको ये एप्लीकेशन मानकर इस साल एग्जेम्पशन दे देंगे और अगले साल उसको अप्लाई कर दीजिए। नहीं अप्लाई करेंगे तो इनकम मान लेंगे। हम तो कर ही देते हैं, हम तो बड़े शरीफ आदमी हैं, पिछले साल वाली अगले साल कर देते हैं, अगले साल वाली लिख को अगले साल कर देते हैं। टैक्स तो हमने देना नहीं, हमने टैक्स थोड़ी देना है, लेकिन हम तो एप्लीकेशन दे देते हैं 9A में। और ये 9A बहुत जरूरी है ड्यू डेट तक, अब अलाउड नहीं होगा, पहले तो अब कभी भी दे सकते थे, अब ड्यू डेट तक फॉर्म भर के देना है। गांधी जी ये सेक्शन 1023C में नहीं है। सेक्शन 1023 अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो उसकी कोई एफडीआर बनी हुई है और वो कंपाउंड है, मैं नहीं जानता, उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता आई विल अप्लाई नेक्स्ट ईयर और आई विल अप्लाई इन द ईयर इन विच आई रिसीव्ड ईयर फॉलोइंग दैट। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर अप्लाई आपके पास पैसे नहीं है तो भी करना पड़ेगा, हम नहीं जानते। 85% अप्लाई करना ही करना है, 15% एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। वो तो 11-12 में भी लिखा है 85-15%, लेकिन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये डिफरेंस है सर, गांधी जी ये डिफरेंस है। तो ये 11-12 वालों को फायदा हो जाता है कि वो ये अंडरटेकिंग दे देते हैं। यहां पर तो अंडरटेकिंग दे ही नहीं सकता ना, तो मैं कह सकता हूं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूंगा, मुझे तो इसी साल करना पड़ेगा, ना ही मैं कह सकता हूं कि हाँ एक ही अंडरटेकिंग दे सकते हैं, वो जो फॉर्म 10 है कि भैया मैं अक्यूमुलेट करूंगा मोर देन 15% और उसके ऑब्जेक्ट बताऊंगा किस लिए अक्यूमुलेट किया, और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन अलाउड है 5 साल, आपको मालूम है। सो वो फॉर्म 10 भर के हम अक्यूमुलेशन देते हैं ना सर, जो आप मोर देन 15% एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। तो गांधी जी उसके लिए भी सुनिए, अगर तो आप 11-12 में हैं तो आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पहले वो फॉर्म देना ही पड़ेगा। अगर आपने डिले कर दिया तो आप एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं होगी। लेकिन 1023C में ये लिखना भूल गए, इसलिए ये बाद में भी दे सकते हैं फॉर्म। ये वाला 11 टू आप 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आप 1023C वाला ये फॉर्म बाद में भी दे सकता है। लेकिन 11-12 वाला ड्यू डेट तक दे दे तो मिल जाएगी, नहीं तो अब नहीं मिलेगी। पहले तो हम रिटर्न के प्रोसीडिंग के टाइम में दे देते थे, रीअसेसमेंट के टाइम पे भी दे देते थे, अब वो अलाउड नहीं है। ड्यू डेट रिटर्न से पहले पहले फॉर्म 10 अपलोड कर कर आपको एक्यूमुलेट जो किया है वो करना पड़ेगा। लेकिन ये बेनिफिट 1023C में है कि आप बाद में भी दे दीजिए। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया। अब आया कॉर्पस डोनेशन। क्या होता है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट। ये तो गांधी जी आपको मालूम है सही से, कॉर्पस डोनेशन। अब इस कॉर्पस डोनेशन में क्या लिखा है? कॉर्पस डोनेशन सेक्शन 11(1)D में माफ है। कहां माफ है सर? 11(1)D में। 11(1)D तो उनके लिए होता है जो 12A में रजिस्टर्ड है, और कॉर्पस डोनेशन 1023C में माफ नहीं थी और आपको अप्लाई करना पड़ता था 85 और 15, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा माफ होता है।
लेकिन वो 11(1)(d) में है, 1023 से में नहीं थी। लेकिन रुकिए, डलवा दी गई। अब डलवा दी गई है कि कॉर्पस डोनेशन 1023C में भी इस साल डाल दी है, वो भी थर्ड प्रोवाइजर के नीचे एक्सप्लेनेशन डाल दी है कि कॉर्पस डोनेशन 1023C में भी माफ हो जाएगी। ये डलवा दी गई सर, पहले नहीं थी। क्यों डलवाई गई इसका रीजन भी मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया सर गांधी जी कि मैंने दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं। दोनों का फॉर्म वही है, 7 में रिटर्न भरनी है, लेकिन जब आप 11-12 में होंगे तो आपको वो टिक करना है, आप 1023 से में तो उपयुक्त करना है। आपके पास अप्रूवल है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, कईयों के पास दोनों है। ये सुनिए सर शुक्ला जी, दोनों के पास दोनों है। आपकी तो मैडम को भी सुनना चाहिए, जमुना जी होंगी यहाँ पर, मुझे पता है। उन कईयों के पास दोनों है। Yes, अब sir. जब दोनों हैं तो वो क्या करते थे, कभी तो 1023C में चले जाते हैं और कभी का 11-12 में चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? 11-12 में कॉर्पस माफ था, 1023C में माफ नहीं था, तो वो इनकी मर्जी करते थे। लेकिन रुकिए, अमेंडमेंट आ गई है, लेकिन पोस्टपोन करा दी गई है अगले साल तक के लिए। पहले ये 1/6/2020 के बाद अमेंडमेंट आ गई थी कि आपको एक तो री रजिस्ट्रेशन करना है, और आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, और आपको यह बोला गया था कि आपके पास अब एक ही होगा, या 11-12 या 1023C, दोनों नहीं हो सकते। लेकिन पहले से तो है, लेकिन ये 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जो मैंने री रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था, री अप्रूवल के लिए कहा था, पहले क्या कहा गया था कि 1 जून से 3 महीने के अंदर अंदर आप जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं उसको अप्लाई करना है फॉर री रजिस्ट्रेशन और री अप्रूवल इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म। वो कोरोना आ गया, पेंडेमिक हो गया, इन्होंने डिले कर दिया कि जो फॉर्म निकालेंगे। अब कहा गया कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर में करना है। अब फिर ये नया बिल आ गया, और नया बिल जो पास हो गया उसमें कह दी गया ना। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, आज सुनने वाली बात है, सारे सुने ध्यान से, ये सुनने वाली बात। सेक्शन 1023C में और 11-12 में गांधी जी क्या किया था कि इन्होंने 1 जून 2020 से कुछ प्रोविजन हटा दिए थे, कुछ प्रोवाइजर डिलीट कर दिए गए थे, कुछ सेक्शन डिलीट कर दिए गए थे 1 जून 2020 से, ये कह के क्योंकि अब नए प्रोविजन आ गए हैं तो पुराने प्रोविजन हम डिलीट कर रहे हैं। ये प्रोवाइजर डिलीट, ये प्रोवाइजर डिलीट, ये प्रोवाइजर। फिर इन्होंने एक टाइम दे दिया कि भैया अप्लाई जो करना है वो 1 जून से नहीं करना, 1 अक्टूबर से कर देना फॉर री अप्रूवल और री रजिस्ट्रेशन, 1 अक्टूबर दिसंबर तक कर देना। तो चलो हमने कहा कोई बात नहीं, वो प्रोविजन वही के वही रहे। अब इन्होंने कह दिया कि वो अगले साल करना, तो अब क्या करें, इस साल का क्या होगा? तो जितने प्रोविजन डिलीट किए थे ना, दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिए, दोबारा आ गए सारे के सारे। जो 1 जून को डिलीट कर दिए गए थे, दे हैव बीन रीइंट्रोड्यूस्ड अप टू 31 मार्च। लोग पागल हो गए। जब मैंने वो बिल देखा, मैंने कहा ये तो पागल कर दिया, सारे के सारे डिलीट करके उसको कह दिया दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड बैक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून। जिनको हटाया उनको वापस ले लिया। ये कौन सा तरीका है? ये कोई चाइना की आर्मी है जिनको कहा वापस जाओ, हमें तुम्हें आगे नहीं रखना है? उनको वापस ले गए, वापस सारे के सारे दोबारा आ गए वो प्रोवाइजो। और फिर क्या लिखा है? 1 अप्रैल से वो हट जाएंगे, 1 अप्रैल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लोग मुझे कहने लगे सर समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा तुम्हें क्या समझ में आएगा, मुझे इतनी मुश्किल समझ में आया तो तुम्हें कहां से समझ में आ जाएगा? वो पागल हो गए। ये क्या करा क्या कि सारे के सारे प्रोविजन जो डिलीट किए गए थे फाइनेंस एक्ट 20 द्वारा, सारे के सारे दोबारा री इंट्रोड्यूस कर दिए गए। ये जो नया एक्ट आया है रिलैक्सेशन एक्ट वाला, उसको सारा रिप्रोड्यूस कर दिया। मेरा तो इनकम टैक्स एक्ट जो मैंने बनाया था, अब उसका क्या करूं? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में अब जब नया इनकम टैक्स बनेगा, पहले मुझे वो दोबारा डालने पड़ेंगे, और डाल के फिर उसको दोबारा, क्योंकि हम तो उसको हटा दिए और उसको नीचे फुटनोट में डाल दिया था। अब फिर फुटनोट से वापस लाओ, और फिर उसके बाद अगले साल उसको दोबारा लिखो, और फिर उसको नीचे ले आओ और फुटनोट को ऊपर ले जाओ। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? लेकिन ये बता दूं, अब क्या हुआ कि अब आपके पास 1 अप्रैल के बाद
सिर्फ एक ही होगा, या रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल। डिसाइड आपने करना है। अब 1 अप्रैल से 30 जून में आपको री अप्रूवल या री रजिस्ट्रेशन सबने अप्लाई करनी है जिनके पास थी। आप कहेंगे ये क्यों लिखा गया? ये मैंने करवाया था। संजय जी भी आ गए जरा सामने। मैंने क्या कराया, जब हम रीराइट कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट, तो मैंने उन्हें बोला सर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लेकिन इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या अप्रूवल नंबर तो है, लेकिन सर्टिफिकेट है 30 साल पुराना, 40 साल पुराना, या तो फट गया है या खो गया है, फाइल में है नहीं। आप रिटर्न भरते हो तो ये कहता है सर्टिफिकेट दिखाओ। रजिस्ट्रेशन नंबर तो मेरे पास है, अप्रूवल भी नंबर है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। वो कहता है मैं तो दूंगा नहीं, मुझे क्या पता ये आपका रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट लाओ। तो मैं कहां से लाऊं? मैंने कहा सर इनको एक तरीका ढूंढ दो, मैं तरीका बताता हूं। तो क्या कर, मैं एक बार इन सबको कहो दोबारा अप्लाई कर दे, री रजिस्ट्रेशन री अप्रूवल, कोई क्वेश्चन ना पूछना, कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्म भरवाना, सिंप्लीफाइड नेम एड्रेस पैन नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या अप्रूवल नंबर, और आप 1 महीने के अंदर अंदर इनको दोबारा ऑनलाइन यूनिक आईडी, अब तो ऑनलाइन होगा ना सारा इलेक्ट्रॉनिकली, इनको एक यूनिक आईडी दे देना ताकि फ्यूचर में कभी खोएगा भी नहीं और सबके पास नया आ जाएगा, और जो हमें एओ तंग करता है वो तंग नहीं करेगा। और आगे से तंग करना नहीं है, फेसलेस असेसमेंट है, हमारी सुनना किसी ने नहीं है। पहले तो फिर भी हम सुना दिया करते थे, समझ गए ना, अब तो सुना ही नहीं सकते। तो हमने कहा भाई यूनिक आईडी दे दो, और यूनिक आईडी मिल जाएगा तो उनके पास अब दिक्कत नहीं होगी, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, हमारे पास भी रिकॉर्ड होगा। तो ये मेरी बात मान ली थी, लेकिन मैंने तो मनाई थी, गए थे ईद मनाने, गांधी जी रोजे गले पड़ गए। मैंने कहा था ये वाला कर दो, लेकिन इन्होंने पता क्या किया है, अब री अप्रूवल री रजिस्ट्रेशन तो करेंगे, लेकिन आगे से जो आपको सर्टिफिकेट या अप्रूवल मिलेगा उसकी वैलिडिटी 5 साल होगी। 5 साल। मैं कहा मर गए, कहता रहा हूं, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। हर 5 साल बाद रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। 4.5 साल से पहले आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करो, और उस वक्त वो सारी चीजें पूछेंगे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए पूछते, रगड़ देंगे उस वक्त। हर 5 साल बाद रिन्यूअल। लो जी, अब मैं क्या करूं, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन क्या किया, अब 1 अप्रैल से 30 जून के अंदर आपने अप्लाई करना है, री रजिस्ट्रेशन री अप्रूवल, फिर आपको मिलेगा 5 साल के लिए, फिर री रिन्यूअल कराना है 5 साल के लिए, चाहे वो अप्रूवल है चाहे रजिस्ट्रेशन है। लेकिन रुकिए, मैंने क्या कहा कि ये वाला केस हो गया तो उन्हें ये भी लिख दिया आगे से दोनों नहीं रखेंगे, या तो इधर जाइए 1023C में या इधर जाइए 1112 में। किनको नुकसान हो रहा है? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन। उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि वुड दे लाइक टू रिमेन अंडर 1023C और वुड दे लाइक टू गो अंडर 1112 एग्जेम्पशन। क्योंकि 1112 में कई चीजें फायदेमंद हैं, 1023C में कुछ बेनिफिट है, कुछ नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान 1023C में फॉर्म 9A वाला है। 9A वाला, जिसकी तो कैश सिस्टम है उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, जिसको मर्केंटाइल सिस्टम है वो तो मारा जाएगा, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का करा दिया या उसने नेक्स्ट ईयर कहा मैं खर्च करूंगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया सर यहां तक। ये सारा का सारा जो भी प्रोसेस था, जो आपने अक्टूबर से दिसंबर तक करना था, वो पोस्टपोन कर दिया गया अगले साल के लिए 1 अप्रैल से 30 जून में। ये क्लियर हो गया। इवन 80G का जो सर्टिफिकेट था अप्रूवल, उसके लिए भी री अप्रूवल के लिए अप्लाई करना था 80G का, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है अरविंद जी नेक्स्ट ईयर में। वो भी पोस्टपोन हो गया, पुराना चलता रहेगा, लेकिन वहां पे भी तो मार दिया। अब जो भी एग्जेम्पशन मिलेगी अगले साल वो 5 साल के लिए मिलेगी, फिर रिन्यूअल करो। मर गए ना, काम बढ़ गया आप लोगों का, कोई बात नहीं, वो काम बढ़ गया, लेकिन क्लाइंट के लिए तो मुश्किल हो गई ना। एवरी 5 ईयर अप्रूवल, एवरी 5 ईयर रिन्यूअल, ये कराना पड़ेगा, याद रखिए। अभी तो मैं बड़ा वार्न करता था, लेकिन अब मैं वार्न नहीं कर रहा, अभी आपके पास टाइम है, 31 मार्च के बाद अप्लाई करना है, अप्रैल से जून तक। लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो एक ही में अप्लाई करेंगे, या 1023C या 1112, अब दोनों में नहीं होगा। अगर आपको बाद में लगता है गलती हो गई तो आप एक बार चेंज करवा सकते हैं कि आप इधर से इधर शिफ्ट कर दें,
ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। अदरवाइज डिसाइड कर लीजिए, अपने लॉयर कंसल्टेंट से पूछ लीजिए मुझे क्या करना है, और वो फाइनल है। ये समझ में आ गया सर? दोनों के डिफरेंस मैंने बता दिए, ये समझ में आ गया सर दोनों के डिफरेंस? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मेजर पॉइंट जो अगला है वो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि provisions of section 40A and 40A subsection 3 and 4 shall mutandis will also apply to charitable trust. पहले चैरिटेबल ट्रस्ट ये कहा करते थे हम बिजनेस तो करते ही नहीं, तो हम बिजनेस नहीं करते तो जो 40IA में 30% का डिसअलाउंस होता है क्योंकि आपने TDS काट के जमा नहीं कराया या काटा नहीं, तो आपका 30% डिसअलाउंस होता है सर। वो कहता है जी अब तो चैरिटेबल ट्रस्ट को भी लगेगा। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई पेमेंट करी जिस पे TDS कटना था, उसने TDS काटा नहीं, तो जितना भी एप्लीकेशन आपने किया 30% ऑफ दैट एप्लीकेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आपको 30% पे टैक्स देना पड़ जाएगा, वो एप्लीकेशन माना ही नहीं जाएगा अगर आपने TDS काटकर ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया। समझ में आ रहा है सर? वो तो अब आपका रूल बन गया कि TDS काटकर ड्यू डेट तक जमा करा दी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक नहीं, ड्यू डेट रिटर्न तक करा दीजिए, नहीं तो 40IA लग जाएगा, 30% नहीं माना जाएगा। इसी तरह 40A3 अगर आप पेमेंट करते हैं कोई भी रेवेन्यू की या कैपिटल पेमेंट करते हैं and the amount of payment exceed ₹10,000, it should be made in a day. It should be made by account pay check or account pay draft or through electronic clearing system or through any other electronic system as may be prescribed. अगर आप उसने नहीं करेंगे तो जितना भी अमाउंट 10,000 से ऊपर किया है, सारा का सारा अमाउंट, आपने एक 20,000 रुपया खर्चा कर दिया, पूरा का पूरा अमाउंट आपका नॉन एप्लीकेशन माना जाएगा, मिस एप्लीकेशन माना जाएगा और आपसे टैक्स देना पड़ेगा। पता ही आपको क्या मतलब है? लोग क्या करते थे, पैसे निकाल के रख लेते थे कैश, क्योंकि ट्रस्टों में क्या होता है, मेरा ट्रस्ट, सपोज अरविंद शुक्ला जी ने ट्रस्ट बना दिया एक कॉलेज, तब शुक्ला जी कहते हैं मेरा कॉलेज। शुक्ला जी आपका कोई कॉलेज नहीं है, ये पब्लिक एट लार्ज का कॉलेज है, आपका कुछ भी नहीं है। आपने तो एक बार दे दिया तो भूल जाओ कि आप डोनर हैं, लेकिन लोग कहते नहीं नहीं मेरा कॉलेज है, ये तो मेरा कॉलेज है। लोगों ने तो पुराने जमाने में कच्चे का पैसा सारा का सारा कॉलेजेस में लगा दिया, हॉस्पिटल्स में लगा दिया, जब तक अनोनिमस डोनेशन नहीं होती थी। सारे यही करते थे, और हर कॉलेज के पीछे, हर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, उसका पैसा लगा हुआ है। 1,000 करोड़ रुपया लगा दिया, 500 करोड़ लगा दिया, किसी ने पूछा कहां से आया, कहता जी पता नहीं, गुल्लक में कोई डाल गया। तो एओ कहता था मैं इसको इनकम मानूंगा, कहता मानना ही क्या, मैं खुद कह रहा हूं इनकम है, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया है, तेरे को एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। मैं तो खुद कह रहा हूं इनकम है, तू क्या कह रहा है इनकम है, मैं तो खुद कहता हूं। तो वो करते थे। फिर तभी तो अब अनोनिमस डोनेशन आया कि भैया नाम बताओ, डोनर का एड्रेस बताओ, सब कुछ बताओ। वो अनोनिमस डोनेशन कौन लाए? गांधी जी, ये पॉलिटिशियन ही लाए। क्यों लाए? कि इतने कॉलेज खोल दिए, इतने हॉस्पिटल खोल दिए, अब तो स्टूडेंट ही नहीं है, तो काम ही नहीं चल रहा था। अगर और कोई कॉलेज खुल जाते तो कंपटीशन बढ़ जाता। उन्होंने कहा अनोनिमस डोनेशन ले आओ, ताकि वायबल ही नहीं है कॉलेज कच्चे के पैसे के बगैर, तब आप कोई कॉलेज खोलता ही कोई नहीं। तो पहले तो नंबर 2 का पैसा सारा लगा हुआ है, अब इनको याद आया नंबर 2 का निकला लगा हुआ है, ये निकालेंगे बोगस खर्चे डाल के। क्यों नहीं निकालेंगे? पैसा तो आप ही है, मालिक तो अरविंद जी है, और अरविंद जी ने पैसा लगाया तो वापस निकालना चाहेंगे। हालांकि कहते तो चैरिटी के लिए दिया है, लेकिन फिर भी वो चैरिटी के लिए निकालना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया 10,000 से ऊपर की कोई भी पेमेंट है अकाउंट पे ही चेक से करना, अब निकाल के देखो। उधर से अनोनिमस डोनेशन कर दिया ताकि टैक्स कर देंगे 30%, तो धन्यवाद हो गया। बात को समझ रहे हैं? सो मेरा पॉइंट ये समझ लीजिए, ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्पस है। तो आइए मैं जो कहने जा रहा था कि अगर 10,000 से ऊपर कोई भी पेमेंट करोगे, चाहे रेवेन्यू की हो चाहे कैपिटल की हो, इट शुड बी बाय वे अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा नॉन एप्लीकेशन मानकर टैक्स लगा देंगे। क्लियर हुआ सर? ये क्लियर हुआ? अब दूसरा पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कहा करते थे कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लेकिन हमारी कुछ इनकम है जो सेक्शन 10 में माफ है।
अगर सेक्शन 10 में माफ है तो उसको अप्लाई करने की क्या जरूरत है? वो तो एग्जेम्प्ट है, आपने एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो अप्लाई करने की क्या जरूरत है? जैसे डिविडेंड आता था तो डिविडेंड 1038 में माफ था, तो एग्रीकल्चर आपको क्या अप्लाई करने? इन्होंने लिख दिया ना। अगर आप 11-12 में जाएंगे, सुन लो, या 1023C में जाएंगे, तो आपकी अगर इनकम एग्जेम्प्ट है किसी सेक्शन में तो वो नहीं मानी जाएगी, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक इनकम छोड़ दी, एग्रीकल्चरल इनकम, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी इनकम जो सेक्शन 10 में माफ है, आप कहते थे सेक्शन में माफ है तो इसको अप्लाई करने की जरूरत क्या है? उन्होंने कह दिया ना, आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी, हम उसकी एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में नहीं देंगे एक्सेप्ट 1023C। वो तो है ही है, 1023 में तो एग्जेम्पशन आप ले ही रहे हैं, लेकिन 10 बाकी किसी सेक्शन में नहीं देंगे। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी इनकम अगर सेक्शन 10 में माफ है एग्रीकल्चर छोड़कर, उसको भी 85% और 15% अप्लाई करना पड़ता है, वो नहीं होगी। अब एक सवाल आया गांधी जी और शुक्ला जी और संजय जी, मेरे से किसी ने पूछा, सर ये 15% जो अक्यूमुलेट करना है वो ग्रॉस रिसीट का करना है कि इनकम का करना है? गांधी जी, इनकम का मतलब होता है आफ्टर एक्सपेंडिचर, वो तो ग्रॉस रिसीट नहीं है, तो किसका करना है? ये बहुत डिस्प्यूट होता था, बहुत डिस्प्यूट होता था। मैं बार बार इनको डिपार्टमेंट को कहता था, क्या ये करार रखा है, ये इनकम कर रहे हो, और इनकम का लोग तो ग्रॉस रिसीट का करते हैं और आप इनकम कह रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं थे। अब इन्होंने क्या किया है, सुन लीजिए, आपका जो फॉर्म आया ना 7 फॉर्म तो नोटिफाइड है, नोटिफाइड तो बाइंडिंग होता है, उसमें कह दिया है कि 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट का करना है। तो अब आपको दिक्कत नहीं है, आपको इनकम का नहीं करना, 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट एक्यूमुलेट करनी है। ग्रॉस, प्लीज नोट द वर्ड ग्रॉस रिसीट, नॉट द इनकम। ग्रॉस रिसीट इंक्लूड्स एवरीथिंग, उसको 15%, चाहे वो इंटरेस्ट से इनकम आई, चाहे स्कूल में फीस आई, चाहे कोई और आया फंड, सब उसका 15% आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। कॉर्पस को छोड़कर, कॉर्पस तो माफी है ना, उसका थोड़ी एक्यूमुलेट करना है, वो नहीं, कॉर्पस को छोड़कर जितनी भी आपकी रिसीट्स है 15% उसका एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब जरा अरविंद जी सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जरा सुनना। मेरी इस साल की ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ सर, कॉर्पस को छोड़कर 5 करोड़ है। मैंने 4 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च कर दिया, तो मैं कितना एक्यूमुलेट कर सकता हूं? कोई बताएगा? मैंने 4 करोड़ 80 खर्च कर दिया, 5 करोड़ की ग्रॉस रिसीट है, हाउ मच कैन आई एक्यूमुलेट? मुझे लाया गया 15%, तो कितना एक्यूमुलेट कर सकता हूं? कोई बता सकता है अनम्यूट करके? 75 लाख कर सकते थे। भाई सॉरी, मैंने निकल गया मेरा। हाँ जी, 75 लाख कर सकते थे, लेकिन 20 लाख बचे हैं मेरे पास। नहीं सर, 75 नहीं कर सकते। उस पे लिखा है, इफ देयर इज एनी अमाउंट सेट अपार्ट और accumulated, so much of the amount set apart accumulated which does not exceed 15%, if any amount set apart or accumulated। आपने तो सेट अपार्ट, आपके पास तो बचा ही 20 है, तो आप 20 के ज्यादा एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकते। ये 75 नहीं कर सकते। कभी सोचो, लोग करते हैं, अरे मैंने कहा कैसे कर सकते हो? करंट इनकम का 15% करना है। अगर आपने 5 करोड़ का 5 करोड़ खर्च कर दिया अरविंद जी, तो एक पैसा भी एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, एक पैसा भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 4 करोड़ खर्च किया तो आप 75 का एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और 4 75 हो जाएगा। या तो 25 के ऊपर टैक्स दीजिए या फिर 11(2) का फॉर्म दीजिए। एम आई राइट? अगर 5 करोड़ है, आपने 4 करोड़ अप्लाई कर दिया, 15% 5 करोड़ का 75 ये भी ले लीजिए, 4 करोड़ 75 लाख, बाकी 25 बचा, उस 25 को या तो खर्च कर, या तो आप एक्यूमुलेट कर लीजिए 11(2) में, नहीं तो टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लियर है ना? Yes. और मैं इसी से क्यों समझा रहा हूं, सपोज करिए इस बार मैंने 5 करोड़ के बदले 5 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च कर दिया, बिल्कुल सही। अब क्या होगा? अब क्या होगा संजय जी? संजय एडवोकेट साहब देखते हैं कि अब क्या होगा संजय जी? कहता है जी 5 करोड़ तो आपने खर्च कर दिया, तो एक्यूमुलेट तो एक पैसा भी नहीं कर सकते, एक पैसा भी एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। तो गांधी जी वो 40 लाख क्या करूं? उसको हम लॉस नहीं कहते, ये पता नहीं लोग इसको लॉस कहते हैं, ये एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन है ओवर द रिसीट। पहले कहते थे, हमारे पास बहुत जजमेंट है
कि जो इस साल की एक्सेस एप्लीकेशन है वो अगले साल की एप्लीकेशन मानी जानी चाहिए। उसमें शुरू हुई थी महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट 164 ITR राजस्थान हाई गुजरात। उसके बाद कई जजमेंट आई, रघुवंशी चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरात, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इतनी जजमेंट आई, सारी की सारी कहते हैं आप अगले साल एप्लीकेशन मान सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट मानता ही नहीं था, कहता था हम तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम नहीं मानते, हम तो नहीं मानेंगे, आपको तो अप्लाई नहीं करा तो वो गया क्योंकि आपने अप्लाई किया। मैंने कहा यार कैसे नहीं मानोगे सर, अब जजमेंट आ गई है सर। गांधी जी सुब्रोज फाउंडेशन, सुब्रोज फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, SUBROS, सुब्रोज फाउंडेशन की जजमेंट आ गई जिसमें कहा अगर आपने एक्सेस एप्लीकेशन किया है तो आप अगले साल की उसको मान सकते हैं एप्लीकेशन, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके उसकी एप्लीकेशन अगले साल की मान लीजिए। मुझे फोन आया, मैंने उनको फोन किया, मैं सर ये लॉ आ गया है, अपना फॉर्म चेंज कर लो 7, क्योंकि फॉर्म में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि अगले साल की एप्लीकेशन माने। कहते कैसे चाल करूं? मैं कहा सुब्रोज की जजमेंट है, आप कैसे कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है? मुझे कहने लगा मुझे क्या पता आप कहां से खर्च किया। मैंने कहा कहां से खर्च किया, मेरे पास पड़ा हुआ है बैंक में, कैपिटल फंड है, जनरल फंड है, तो उसमें से खर्च कर दिया, तो तुम्हें क्या लेना देना? नहीं फिर तो आपने उसको खर्च किया तो आपने तो 15% की एग्जेम्पशन ले रखी थी, उसमें मैं कैसे दे दूं? मैं क्या बातें करते हो यार, बढ़िया की दुकान भी अच्छी होती है तुम्हारे से, तो ये क्या कर रहे हो तुम यार कि यार 15, अरे मैंने क्यों खर्च कर दिया एडवांस में, अगले साल की एप्लीकेशन मानो, तो उसमें क्या बात है? कहते अच्छा मान लेते हैं, लेकिन कोई कॉर्पस से करेगा तो क्या होगा? मैं कहा जी कॉर्पस की डोनेशन तो माफ होती है, उसको तो 15% देखते ही नहीं है, तो आप ये लिख दो कि कॉर्पस से नहीं होगा, अदर देन कॉर्पस का अगर है तो 15। कहता जी अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं कहा प्रभु जी बना देंगे, पर लॉ तो लाओ, प्रभु जी बना देंगे, फॉर्म तो चेंज करो। अभी तक फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, पता नहीं आ जाएगा, करेंगे, उनको करना पड़ेगा एक्सेस एप्लीकेशन। ये क्या तरीका है? तो अगले साल की एक्सेस एप्लीकेशन सुब्रोज फाउंडेशन में मान ली गई है, तो आप ले जा सकते हैं अगर इस साल ज्यादा खर्च किया। लेकिन कॉर्पस डोनेशन क्योंकि फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो गांधी जी उससे कोई एप्लीकेशन नहीं मानी जाती, उससे कोई भी चीज लो तो एप्लीकेशन नहीं मानी जाती, ये पहले बता दूं। आपने कॉर्पस डोनेशन से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, हम नहीं जानते, वो एप्लीकेशन है ही नहीं। कॉर्पस डोनेशन की एप्लीकेशन आप दो जगह थोड़ी माफ करा लोगे, पहले कॉर्पस डोनेशन माफ करा लोगे और फिर एप्लीकेशन माफ करा लोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कॉर्पस वाली तो इसको एप्लीकेशन मत मानो, बाकी को एप्लीकेशन मानो। मान लिया मैंने, ठीक है सर, मान लिया ना, आप उसको एप्लीकेशन मान रहे हैं आपकी इनकम का, तो इसको एप्लीकेशन मान के अगर आपने एक्सेस कर दिया तो अगले साल की एप्लीकेशन मानी जा सकती है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सर? ये सुब्रोज फाउंडेशन की जजमेंट मैंने आपको बताई। दूसरी, अरविंद जी आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया, वो एप्लीकेशन माना जाता है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलता, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। अगर तो आपने कॉर्पस का अमाउंट खर्च किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किया तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन माना जाएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो फिर इसको एप्लीकेशन मत मानना, एक चीज मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। पहले तो दोनों लेते थे हम, चित में जीता पट तुम हारे, दोनों में हम ले जाते थे, लेकिन अब दोनों नहीं मिलती, अब एक ही मिलती है। या तो मानो एप्लीकेशन फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर, या क्या मानो वो। ये समझ में आ गया? ये भी क्लियर कर दिया कि एप्लीकेशन नहीं मानी। अब आया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये आया सर कि क्या हम बिजनेस कर सकते हैं 1023C में, 11-12 में? जी हां कर सकते हैं। एक कॉलेज है सर, वो कैंटीन चला सकता है, किताबें बेच सकता है, यूनिफॉर्म बेच सकता है। एक हॉस्पिटल है, नीचे डिस्पेंसरी खोल सकता है, मना नहीं है, बिकॉज इट इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। कंडीशन सिर्फ यही है, separate books of accounts to be maintained. Am I right? And if it is more than a limit, tax audit required. उसके लिए टैक्स ऑडिट है, बाकी के लिए नहीं है। टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस अलाउड है। इवन उसमें भी मैंने बताया था 11-12 में, उसको छोड़कर, कौन से वाले को छोड़कर? advancement of any other object of general public utility where total receipt should not exceed 20%. बाकी में तो अलाउड है, it should be incidental to the attainment of the objective. मिस्टर राव देख रहे हैं,
कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। राव साहब, मैंने आपका नाम लेना भूल गया, अब ले रहा हूँ। ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और उनका नाम लेना भूल गया, शक्ल नजर नहीं आई, अब मैंने देख लिया तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तभी तो कहता हूँ मेरे सामने रहो, बहुत फायदा रहेगा। फोटो दबा लोगे तो फायदा नहीं रहेगा, मैं आपका नाम लूंगा। तो चलिए राव साहब, थैंक यू, वेलकम बैक। अब आगे बढ़ रहा हूं। अब सुनिए, आगे सुनिए सर। मैंने आपको कहा कि आप बिजनेस कर सकते हैं इंसिडेंटल वाला, और आप सेपरेट अकाउंट्स बनाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको अप्लाई कर दीजिए, और हम कुछ कह ही नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, लोग क्या करते हैं सर, देखिए कोई इनकम को टैक्स कराते हैं ना, अब हाउस प्रॉपर्टी है, आपकी रेंट आया है उस ट्रस्ट को, तो अगर आपकी इनकम क्या मानी जाती है, व्हाट इज योर ग्रॉस रिसीट, पूरा का पूरा रेंट ग्रॉस रिसीट है, और उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, चाहे वो म्युनिसिपल टैक्सेस हो, चाहे वो आपके रिपेयर के हो, चाहे वो इंटरेस्ट के हो। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये 30% डिडक्शन दे दो। अरे भैया 30% डिडक्शन तो उसमें मिलती है इनकम में, या तो इनकम कमर्शियल सेंस में निकालनी। इनकम हैज टू बी कंप्यूटेड इन कमर्शियल सेंस। यू विल नॉट गेट 30% डिडक्शन एट ऑल. You will get actual deduction of interest, actual deduction of municipal taxes, actual deduction of repairs and everything. लोग ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे कैपिटल गेन हुआ ट्रस्ट वाले को, तो मैंने कहा क्या हुआ, फिर क्या करूं? कहता है जी इंडेक्सेशन दे दो। मैंने धन्यवाद, कोई इंडेक्सेशन नहीं है। आपने इनकम कमर्शियल सेंस में निकालनी है, आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट निकालना है। एक्ट में सर इतना कंफ्यूजिंग एक्ट है, 11(1)A में कैपिटल गेन लिख दिया। अरे भैया कैपिटल गेन कहां से हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, लिखा हुआ है, चला आ रहा है, लिख दिया। हमने तो चेंज कर दिया नए लॉ में जो नया बनाया है, लेकिन पुराने में तो बेड़ा गर्क कर रखा है। कहते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम तो प्रोवाइजो डालते रहते हैं, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड आफ्टर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड डालो जाओ। उनको कहते हैं हमें समझ में आता नहीं, हम करें क्या? तो ये तो मैंने आपको बता दूं, समझ में नहीं आता। अब देखिए सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक और जेंटलमैन मेरे सामने आ गए हैं, नाम पढ़ रहा हूं, रविंदर जी है, क्या नाम है? तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, राव जी जरा सुनिए। आई वॉन्ट टू परचेज ए बिल्डिंग फॉर चैरिटी। 5 करोड़ की बिल्डिंग है शुक्ला जी, मेरे पास तो बैंक में 2 करोड़ पड़ा हुआ है, मैंने 3 करोड़ का लोन लिया इस साल, 5 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली। तो मुझे कोई बताएगा कि एप्लीकेशन कितनी मानी जाएगी करंट ईयर में? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन? 5 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है, तो हाउ मच? शुक्ला जी कह रहे 5 करोड़, मैं कहूंगा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये नहीं, ओनली 2 करोड़। जो 3 करोड़ आपने लिया वो लोन है, और लोन इज नॉट एन इनकम, लोन इज नॉट एन इनकम। शुक्ला जी आपकी एप्लीकेशन 2 करोड़ है। लोग कहते हैं जी बैलेंस शीट में तो 5 करोड़ दिखाई है। मैं क्या, अकाउंटेंसी को अलग चीज है, इनकम टैक्स अलग चीज है। अकाउंटेंसी को इनकम टैक्स में मत बोलो, क्योंकि अकाउंटेंसी में इधर 5 करोड़ दिखा दी, 2 करोड़ का बैंक बैलेंस कम कर दिया, 3 करोड़ का लोन दिखा दिया आपने। यही क्या ना अकाउंटेंसी में, तो 3 करोड़ का लोन, लेकिन एक्चुअली एप्लीकेशन 2 है। जब लोन को रीपे करेंगे और साथ में इंटरेस्ट देंगे तो वो एप्लीकेशन माना जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन along with the interest will be an application and not 5 crore। और लोग सारी गलती करते हैं। वेरी क्लियर, क्या करूं? वेरी क्लियर, बहुत अच्छा, हैं? बहुत बढ़िया। समझ में आ गए ना सर रीजन? क्योंकि इनकम 3 करोड़ इनकम नहीं है, वो तो लोन है, और लोन को अप्लाई करना कोई एप्लीकेशन थोड़ी है। लोन इज नॉट एन एप्लीकेशन, लोन को इनकम। सो लोन मांगिए, जब लोन की रीपेमेंट करेंगे ना शुक्ला जी, और साथ में कभी इंटरेस्ट भी देना है, तो उसको एप्लीकेशन मानिए, क्योंकि हमें अकाउंटेंसी अलग है और इनकम टैक्स अलग है। सो 10B की रिपोर्ट जब जाएगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझाता हूं, लेकिन वो भी गलती करते, वो कहते हैं सारे के सारा एप्लीकेशन है। जी नहीं, ओनली 2 करोड़ एप्लीकेशन। जब दोबारा रीपे करोगे तब एप्लीकेशन माना। अब एक और उल्टी चीज ले रहा हूं, सुनिए शुक्ला जी, मैं कॉलेज हूं और मेरे ऑब्जेक्ट में लिखा है कि मैं बच्चों को लोन दे सकता हूं एजुकेशन के लिए, और मैंने एक बच्चे को लोन दिया 5 लाख रुपए का एजुकेशन के लिए। तो बताओ क्या एप्लीकेशन है? रिफंडेबल है, लोन है तो रिफंडेबल होता है। पूरा 5 लाख रुपया एप्लीकेशन मान ली जाएगी, पूरी 5 लाख रुपया।
लेकिन जब लोन वापस आएगा तो इनकम मान ली जाएगी। वाह, ये तो चीजें हैं सुनने वाली, समझने वाली। When you are advancing loan for education, it is your object, it is application. When you are getting back the money, it is the receipt. लोन जब वापस आएगा, अगर इंटरेस्ट भी ले रहे हो तो वो भी रिसीट मानी जाएगी। तो ये भी गलतियां करते हैं लोग। मैं तो बता डॉक्टर रहा हूँ, आहूजा, चैरिटेबल डॉक्टर- ट्रस्ट में तो लोग करते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कह रहे हैं कोई? Dr. Ahuja, kindly, हाँ if you could possible, kindly complete within 5 minutes. सर, मुझे तो कहिए तो 3 घंटे बोलता रहूंगा, मुझे कहिए तो 2 मिनट में वो तो खत्म होने सही है, वाला है। वो तो अभी सही है, लीजिए, पर- अभी लीजिए, अभी हाँ, लीजिए सर, अभी लीजिए, अभी। I'm going to conclude because you have other functions also. I'm not denying that way. Now please, जब भी आप रिटर्न भरें फॉर्म 7 में, प्लीज, एक तो आपके पास पैन नंबर गलत है। आप कईयों ने एओपी का पैन ले रखा है। यू शुड हैव पैन नंबर ऑफ टी ट्रस्ट, लेकिन कईयों ने एओपी का ले रखा है। जब फॉर्म भरें तो प्लीज टिक करना कौन सा सेक्शन 1023 सी है, तो जो भी उसकी सब क्लॉजेज हैं, अगर सब क्लॉज 3 आईएबी कर दिया तो आपसे रिपोर्ट नहीं मांगेगा। सेक्शन 1023 वीआई करा, वो कहेगा पहले ऑडिट रिपोर्ट लगा। तो कई चीजें, फॉर्म 7 भरना है। कईयों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है या कईयों के पास अप्रूवल नहीं है, तो उनकी पूरी की पूरी डोनेशन टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। 50,000 से ऊपर की कोई डोनेशन जितनी भी एग्रीगेट आई, सारी की सारी 1 अप्रैल 2017 के बाद उसकी इनकम टैक्सेबल है। तो मैं यही कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि देयर विल बी मेनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आई नो दैट। तो लीजिए, आस्क क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच। सर कुछ देर और चल सकता था सर, 10 मिनट चल सकता था। सर, मुझे डर लगता है। आपके क्वेश्चन को मैं जितना बढ़ा बढ़ा लीजिए, जितने क्वेश्चन पूछने पूछ लीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। Thank you. क्योंकि Thank you, दोबारा sir. बुलाएंगे नहीं आप, मेरे को कहेंगे ये तो टाइम लेगा मेरा। मैं नहीं हूं, मैं जितना कहूँगा उतने में कंप्लीट कर दूंगा। चलिए। बिल्कुल सही है। Thank you very much, Dr. Ahuja, for the wonderful tackling of the subject and the nice deliberation. 2-3 issues I would like to, which are not on the subject. First of all, the organizers, I will request them that for the very important persons, the introduction may not be given, because they always within a week more figures are added to them, and you give the introduction 15 years, 20 years back, and even in the morning session also. Oh, sir, it was a joke, sir. Please don't take it seriously. The question is that the introduction of the persons should be given very tactfully and very after taking all the inputs. In fact, they could have asked Dr. Ahuja also to give the introduction of biota, so that proper could have come. So they should take care of the same in the future. अगली बार से Dr. ड्रेस Ahuja- कोड भी बता दिया करे सर, मेरी को गलती हो गई थी इस बार। No. And Dr. Ahuja, after hearing you, I was feeling like I was sitting in the classroom and when teacher was teaching me. Because in fact, I will fully appreciate that I don't know the intricacies provisions of all the law, because I practice only in the High Court. So the provisions of the different clauses and all those things which are there, we don't deal with in it. Obviously, sir, obviously. हाँ जी, We deal with only when the matter comes to before us. But you have explained very nicely the provisions of the Act and within short span. In fact, I know that the subject is very vast, so it needs a lot of time and energy. Now, only one thing, Dr. Ahuja, being a very big person, I am a Baniya. So please don't leak the Baniya ki dukan. That word I think is. सर, in बहुत fact- फेमस है बनिया की दुकान, तो बहुत फेमस होती है। But the controversy, in the words context it was said, I think that it should be not be there. सर, डोंट टेक इट Because सीरियसली। ये No, बातें because- करने वाली होती हैं। हम No, कई no, बार but- कहते हैं उसके 12 but बज गए, in तो उसका the- मतलब in ये the नहीं है कि मैं उसको सुना रहा हूँ। नहीं अहुजा जी, आपने तो वो बोल लिया। 12 बजे वाले के लिए मैं समझा, उसको नहीं सुना रहा किसी को। अहुजा जी, आपने तो बोल लिया, अब मैं भी तो अपनी फीलिंग बोल दूं कोई, because आप बोलिए, प्लीज 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 being the प्लीज chairman, I also must explain my feelings, because I प्लीज don't. प्लीज, वेलकम वेलकम वेलकम। I always am the firm believer that I don't keep anything in my heart. Whatever is there, whatever I think, I explain, because I don't keep in my heart. As Welcome. the same thing, the way because you explained that
the things you don't keep in your heart. You always speak. As you said that certain persons who were not present in the webinar, and they just close the video and all those things, that gives a difficulty. I fully appreciate, because in the technical sessions, whatever there, in the physical sessions also, you will find that people are there very 50 or 70 are available, and rest all go here and there. They're not interested in learning and the subject. And when the person like Dr. Ahuja is available, then every person should take the advantage of it and should listen and should learn whatever is there. One thing was there, the Income Tax Act, new Income Tax Act, as I could understand, because I have a little idea of those things, that Income Tax Act is being prepared by you, the new Income Tax Act. I hope and trust at least that whatever deficiencies are there in the present act, they will be all taken care of by you. They have been taken care, sir. All the provisions would go, all the explanations would go, Sir. There are about 555 sections in the new old act. We have reduced it to 275 sections without any proviso. No proviso. Explanation is there. No proviso. It is very harmful for the lawyers like us and the professional harmful. It will be a great harm caused by Dr. Ahuja to the lawyers by Sir, मेरे को भी लगेगी ना, मैं भी तो अपने लिए कर रहा हूँ. By deleting the provisos and the explanations. But I can assure you, Dr. Ahuja, that let the new act come. The lawyers are there who can get the provisos and explanations added within 1 year itself by different judicial decisions. When they will come, then the provisos will be inserted, the explanations will be added, and it will become more complicated than what Income Tax Act is as on today. पक्की बात है. So you always take care of preparing something. When the new act came, when the VAT was there, then we took it that every problem now VAT has come, so all India, everything is removed. Then the GST came, then we said that, oh, very good. Now one nation, one tax, things are over. And I think the GST now has become the most complicated and favorable subject for the tax lawyers who are present, arguing in the high courts at least. It may be difficult for the practicing lawyers who are practicing the department to get the implementation of the act and rules. But the lawyers, they are in a boon. And according to me, such a GST act, such an income tax act is always welcome. Now, practical difficulties which you have pointed out to the chartered accountants who are practicing and all those things, I think that will be a great help to them from the deliberations. They can understand the difficulties, they can understand the problems that they will be facing in the coming future, and how to tackle with it. I don't know what in fact, I've not understood. In fact, when you said that what is the amount, somebody said 75 lakhs. I mean, for me, the 75 lakhs or 50 lakhs, it was one and the same, because I have not money, because I don't deal with it, so the subject was not there. But you make them understand fully by giving every example within the time framework. Even according to me, the given time framework was very short. The organizers should organize a full day webinar during taking your precious time. You're taking your precious time. They should organize 2.5 hours in the morning and 2.5 hours in the evening a subject, and may invite you so that you may explain each and every subject on it. And I personally feel that I will be present there so that I can learn each and every proviso of the provisions of the act. I'm really grateful to Dr. Ahuja for his wonderful deliberations, and look forward meeting you again in some other platform and meeting you again. Now, if the queries, some questions and answers there, Dr. Ahuja is there. You can, some members, if you ask the questions, I think Dr. Ahuja will be glad to answer the questions. Thank you, Dr. Saraf. मैं डॉक्टर आहूजा साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत क्लियरली कई पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया. मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस अपने आप आंसर हो गए हैं. 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास जो लिखित आए हैं वो मैं करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स से लेंगे. सर, in a registered charitable trust in accordance with the main object of providing medical relief to the poor and needy, can the medical services provided out of custom barriers of the country be considered as being in accordance with the aims and objects of the country? सर, नेपाल में भूकंप आया, किसी कंपनी चैरिटेबल ट्रस्ट में, वहां मेडिकल रिलीफ दी, उसका क्या? देखिए, ऐसा है, वहां लिखा है you have to spend the money for charitable purposes in India to the extent it is applicable in India. But if you have sent somebody for abroad for treatment, so that they have been very liberal in giving that exemption
Otherwise, let me tell you, relief to the poor, no poor is sent abroad for treatment. They are sent here only. They cannot afford to send that poor man to the outside country, you know. But it is basically for spending that money in India. That is there. Dr. Ahuja, the bank transaction tax which is there now for withdrawal of the amount. Section 194N, you are talking about more than 1 crore. So whether that More will than be 1 applicable- crore. Whether that Haji? will be applicable in respect, whether that will be applicable in respect to a charitable trust also if they withdraw the amount. Anyone, any person you withdraw, except those given exemption, like government, like other, there is a list given for exemption. The But I others think- are supposed to, it is applicable to everyone. I think I came across one decision of Madras High Court wherein this it will not So be applicable. decision, you may be doing anything. 194N is the new one. It is No, recently 190 introduced. No, 194, and I think one decision has come wherein it was, I came across. They have one of again those- changed, sir. They have again changed the law this time from 1st October. Okay. So 1st October to change now. No. Sir, one more question. Registered charitable trust running a hospital provides treatment to the family members of the managing trustee and also spends substantial amount on medication, outsourced surgeons and expert consultations. लाखों रुपया खर्च किया. Section 33 says that if you apply any amount for the benefit of the person referred to in section 33, which includes the relative also, then that amount it is not treated as application of income. But there is a concession given that if you give this benefit of education or medical, only that part of income, whatever concession you have given, that will be taxable. The other will remain there. So 2 concessions have been given. That is for education. If in a school, some relative is taught and they are given concession, or in a hospital, some relative of the trustee or the person who has donated is treated, and instead of 5 lakh, they have charged 2 lakh, then that 3 lakh rupees will be taxable if there is a concession. Otherwise, absolutely no problem. Right, sir. Sir, a charitable trust was registered about 15 years back. Both 12A and 80G were there. For assessment year 10-11, it has an assessment order where 12A and 80G certificates are mentioned. However, the original certificates got misplaced and assessment proceedings for 15-16, the assessment AO passed orders by treating the trust as non-registered, unregistered trust. Request to the CIT to provide duplicate copy of the original registration. They don't have in the record. They don't have in the record. They don't have. उनका सब read out होगा. And that is the reason we ask for re-approval, re-registration. But ऐसे they will जो win the case. They will win the case. They will win the case without. Yeah, AO, sir, वो अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस वर्ड पे. AO को देना चाहिए था जब पिछले ऑर्डर हैं. How can he prove that it is not there? But you understand my point. But that's why faceless, don't worry. Now we are going to give you unique ID. And the moment you are given unique ID for registration, you will never lose it. They will also not know it. And you get it. That is the reason why this was, I suggested that let them apply once again so that the benefit may be given to them and they may not have to go for litigation for unnecessary things. Right, sir. Sir, Q&A box में बहुत सारे सवाल हैं सर. क्या आप देखेंगे सर या कि मैं आपको जोतरे को जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको टाइम देना है. मेरे को कहोगे मैं देख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप मैं क्या होता है, मैं क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि लोग कहते हैं जो इनको आता था उसका जवाब दे दिया, बाकी हमारा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है. जान के कह देते हैं. तो इसलिए आप पढ़िए, आप पूछिए, मैं जवाब देता रहूंगा हर सवाल का. लोगों की आदत होती है. इवन टीवी चैनल में भी देखा है कि वो कह देते हैं यार इस सवाल का जवाब मेरे को नहीं आता, इसको मत पूछना, इसका नहीं आता मुझे मत पूछना. आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ूंगा इसी कारण से. ओके सर. चलिए. Shukla ji, I think the time, because the next session will also be there. So आपने important questions तो आपने पूछ लिए जो पूछने हैं. Rest always you can subsequently contact Dr. Ahuja and take the answer, and thereafter you can separate into the IFTB journal, because I think now you must, it's 1:45 now. You have the next sessions also, and after some lunch break. So I think it's better now to conclude. Okay, sir. I respect your feelings, sir. और हम लोग हमेशा सर प्यासे रह जाते हैं. आहुजा साहब जब भी आते हैं लगता है और मिल जाए और मिल जाए. और जैसा अभी डॉक्टर सराफ ने कहा भी, ये हम लोग को आपके साथ में पूरे दिन का सेशन होना चाहिए. हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उसको भी किया जाए. सर, इसी के साथ साथ I will request Mr. D.K. Gandhi ji to
propose a vote of thanks for this session. Wonderful session. So, over to DK Gandhi. Gandhi sir? Yes. Am I audible? Yes. fully audible. Sir, respected chairman, sir, respected Dr. Ahuja साहब, आज का सेशन, आज का जैसा हमारा इनॉग्रल सेशन था, उसी तरह हुआ. इट वाज ए मास्टर ब्लास्टर इनिंग ऑफ डॉक्टर आहूजा एज यूजुअल. और सब लोग जानते हैं उनकी तारीफ में जितने शब्द कहे जाएं वो कम है. लेकिन एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूँगा मैं कि गिरीश का मतलब होता है हिमालय पर्वत, पर्वतों का राजा. तो जो इनकम टैक्स जैसा टफ सब्जेक्ट है उसमें वास्तव में वो हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों को छूते हैं और उनके ज्ञान की हम सराहना करते हैं. वो एक आयकर में हिमालय पर्वत हैं. और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर अशोक सराफ, उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि वो सबको ऐसा बना देते हैं कि मुझको कुछ आता नहीं है, मैं चेयरमैन हूं, क्वाइटली बैठा हूं, बट जब वो आते हैं अपनी पर तो सबको आत्मविभोर कर देते हैं, सबको खुश भी कर देते हैं और अपने ज्ञान की गंगा से अपने उसमें प्रभाव में सबको बहा ले जाते हैं. बहुत प्रिसाइज बात करते हैं. सो थैंक्स टू बोथ द लर्नर्ड चेयरमैन सर और डॉक्टर आहूजा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा सेशन को, हमारी आज की कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए, प्रथम तकनीकी सत्र को बहुत अच्छा करने के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं. पूरे नॉर्थ जोन की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत सारगर्भित रूप से धन्यवाद करता हूं. डॉक्टर आहूजा का, डॉक्टर अशोक सराफ का, दोनों ही डॉक्टर्स का हमें केयर और क्योर मिला है इस सेशन में, बहुत पैशन के साथ, प्यार के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Take care. Thank you. All the best. Take care, sir. Thank you. Thank you, Gandhi ji. Friends, an enlightening technical